زندگی جب ہم سولی پہ چڑھا دیتی ہے، ماں تو صبح تے بھی جینے کی دعا دیتی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جائیں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمی محشر سے جب پھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائیں، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے داتا، اس گناہگار امت کو بہت زیادہ پیار کرنے والے آقا، آقائی نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار، غم غریبوں کے غم گسار، حضرت حسنین کریمین کے نانا جان، حضرت فاطمہ الزہرا کے ابا جان، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم کر پڑھیے گا درود پاک۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، شعر سنیے گا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے دوڑا نور کا۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ برادران ملت اسلامیہ، آج کی اس محفل کو انجمن غلامان مصطفیٰ کی جانب سے اس کو سجایا گیا۔ رضا کے چاہنے والوں نے محفل کو رکھا، رضا کے چاہنے والوں نے محفل کو سجایا، اور اعلیٰ حضرت کوئی ایسی ویسی شخصیت کا نام نہیں، اعلیٰ حضرت سنیت کی سب سے بڑی طاقت کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ ہمارے دل اور دماغ کا نام اعلیٰ حضرت ہے، ہماری جانوں کا نام اعلیٰ حضرت ہے، ہماری دل کی دھڑکنوں کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ اور کیوں اعلیٰ حضرت نہ ہو؟ جس نے اپنی ساری زندگی عشق مصطفیٰ میں گزار دی ہو، جس نے اپنی ساری سانسیں مصطفیٰ کی محبت میں لی ہوں، تو کیوں ہم اس اعلیٰ حضرت کا ذکر نہ کریں؟ اور اعلیٰ حضرت وہ ہیں، آج میں آپ کو بتاؤں، کسانی کرنے والا اعلیٰ حضرت کو سمجھ گیا، مزدوری کرنے والا اعلیٰ حضرت کو سمجھ گیا۔ سنیے گا بھیا، ادھر دھیان دیجیے گا،
मजदूरी करने वाला आला हजरत को समझ गया, किसानी करने वाला आला हजरत को समझ गया, मगर ये फ्री की सनदें लेकर के घूमने वाले, लंबे लंबे जुब्बे पहनने वाले, अपने भाई का कुर्ता, बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पजामा पहनने वाले, ये नजद की बदमाश औलादे आला हजरत को न समझ पाई। मैं तो ये कहूँगा अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम अहमद रजा की समझने की बात करते हो, कयामत आ जाएगी मगर मेरे ताजुश शरिया को न समझ पाओगे। आज हम कहते हैं क्या आला हजरत हैं, आओ मैं तुम्हें बताऊं आला हजरत कौन आला हजरत हैं। वो आला हजरत हैं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी इश्क मुस्तफ़ा में गुजार दी। ये वो आला हजरत हैं, चलते हैं तो नबी की मोहब्बत में, खाते हैं तो नबी की मोहब्बत में, पीते हैं तो नबी की मोहब्बत में, चलते हैं तो नबी की मोहब्बत में, लेटते हैं तो नबी की मोहब्बत में, बोलते हैं तो नबी की मोहब्बत में, लिखते हैं तो नबी की मोहब्बत में। ये वो आला हजरत है जिनका सोना है मुस्तफ़ा की शरीयत के मुताबिक, जिनका चलना है मुस्तफ़ा की शरीयत के मुताबिक, जिनका बैठना है मुस्तफ़ा की शरीयत के मुताबिक, जिनका खाना है मुस्तफ़ा की शरीयत के मुताबिक, जिनका लिखना है मुस्तफ़ा की बात बताई हुई बातों की लिखना है, जिनका लिखना मुस्तफ़ा की शरीयत के तरीके पर लिखना है। ये वो आला हजरत है। आला हजरत मेरे वो रजा हैं, आपके दोनों हाथों में कलम होता, दाहिने हाथ में भी कलम, बाहने हाथ में भी कलम, और आप अपने दोनों हाथों से लिखा करते। और उसी दौरान आपका चाहने वाला जब आपके करीब आता, आकर के सलाम करता, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आला हजरत उसके सलाम का जवाब दिया करते। मगर रजा के दोनों हाथों के जो कलम आपके हाथ में, दोनों हाथों में कलम है, आला हजरत के कलम चलते चले जाते हैं, रजा लिख रहे हैं मगर सलाम का जवाब दे रहे हैं। आने वाले ने पूछा था रजा आपका क्या हाल है? आला हजरत ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हाल अच्छा है। आला हजरत बात भी कर रहे हैं मगर कलम भी चल रहा है। अब एक दिन आकर के आपके चाहने वाले ने कहा, आला आपके चाहने वाले ने कहा रजा हम आकर के सलाम करते हैं, आप हमें सलाम का जवाब भी देते हैं। अहमद रजा हम आपसे बात करते हैं, आप हमारी बात का जवाब भी देते हैं, मगर आओ जरा एक बात बताइए रजा, जब आप हमसे हम कलाम करते हैं, आप हमसे बात करते हैं मगर आपका कलम नहीं रुकता, वजह और बिना क्या है? आप लिखते चले जाते हैं। तो मेरे रजा कहते हैं जब मैं लिखने के लिए बैठता हूँ तो दाहिनी जानिब मामना का लाल होता है और बाहनी जानिब बगदाद का गौसे आजम होता है। बताता गौसे आजम है, लिखता अहमद रजा है, बताते मुस्तफा है, लिखता अहमद रजा है। तो आला हज़रत फरमाते हैं अरे मेरा लिखने का अंदाज अलग है, बात करने का अंदाज अलग है। रजा कहते हैं मैंने अपनी सारी जिंदगी मुस्तफा के इश्क में गुजारी है, मगर अहमद रजा का कहना है दम निकलेगा तो नबी की मोहब्बत में, जिएगा तो नबी की मोहब्बत में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा नूरी मियां साहब क़िबला, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। ये मेरे आला हजरत हैं। आला हजरत की शान निराली है। आज लोग आला हजरत पे उंगलियां उठाते हैं और कहते हैं ये पांचवा मसलक कहाँ से आ गया, ये छठा मसलक कहाँ से आ गया। मैं कहूँगा यार तुम उंगली क्यों उठाते हो? ये मसलक वही है जो मसलक इमाम आजम का मसलक है, ये मसलक वही है जो मेरे गौसुल वरा का मसलक है। तुम आज उंगलियां उठाते हो रजा पे। अगर मेरे रजा अगर दुनिया में ना आते, अल्लाह दुनिया में रजा को पैदा ना करता, तो आज न जाने हमारे ईमान का क्या होता। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर ईमान अगर इस्लाम को बढ़ाया है तो चले जाओ अजमेर की धरती पे और गरीब नवाज की बारगाह में चले जाओ। जब मेरा गरीब नवाज अजमेर की धरती पे तशरीफ लाया और लाने के बाद आपके साथ में आपके मुरीदीन भी हाजिर हैं, आए थे अजमेर की धरती पे, आपने अपने मुरीद को हुक्म फरमाया और कहा जाओ अना सागर से पानी भर करके लेकर के आओ। मगर जब वहां के राजा ने, जब वहां के बादशाह ने जब इतना देखा, इतना सुना है, आपके गुलाम ने जाकर के कहा था कोई अबाबा आया है, अजमेर की धरती पे आया है और आकर के यहाँ पर उसके मुरीद आते हैं अना सागर के करीब और आकर के वहां से पानी लेकर के जाते हैं। अब उनके वहां के बादशाह ने कहा, जब वहां के बादशाह ने कहा अपने गुलाम से, कहा वहां पर पहरे लगा दिए जाएं, किसी को पानी ना दिया जाए पीने के लिए। अब ये गए थे पानी लेने के लिए। मेरे गरीब नवाज का जब मुरीद पहुंचा है अना सागर
सागर के करीब, तो वहां पे देखा पहरा लगा हुआ, कहा यहाँ पीने के लिए पानी नहीं दिया जाएगा। इतना फरमाया, जैसे ही उस बादशाह के गुलाम ने कहा है, अब वो आया है गरीब नवाज के करीब, आकर के कहा सरकार पानी नहीं दिया गया, मैं अना सागर के करीब पहुंचा था, मगर मैंने कहा था पानी चाहिए, कहा यहाँ आपको पानी नहीं दिया जाएगा। गरीब नवाज ने फरमाया जा इसे कासे को लेकर के चला जा, और जाने के बाद अना सागर के करीब चला जा और जाकर के कह देना ख्वाजा ने कहा है इसके अंदर आ जा। इतना जगह गरीब, जब आपका गुलाम गया, आपका मुरीद गया है अना सागर के करीब, और जाकर जैसे ही पहुंचा है अना सागर से कहने लगा कि अना सागर इसके अंदर आ जा। गरीब नवाज ने कहा है, ख्वाजा ने कहा है, जब इतना कहा था तो अना सागर का पानी सारा उस कासे के अंदर समा गया है। अब ये देखने लगे जिनका पहरा वहां पे लगा हुआ था कि यहाँ से पानी किसी को ना दिया जाएगा। अब अना सागर सूख गया है। अब अना सागर जब सूखा है, ये भागा हुआ पहुंचा है वहां पर अपने बादशाह के करीब, और जाकर के कहा अना सागर का सारा पानी सूख गया है। कहा जरा ये तो बता पानी कैसे सूखा है। कहा जरा एक बात तो बता कि उस तालाब के करीब कोई आया था? तो उसने कहा था हाँ आया था, वही फकीर था जो पानी लेने के लिए आया था, जिसको उस तालाब से वापस कर दिया गया। कहा अच्छा उसको वापस कर दिया गया। कहा उसके करीब हमें लेकर के जाया जाए। अब जैसे ही गरीब नवाज के करीब लेकर के गए हैं बादशाह को उसके गुलाम, पहुंचा है गरीब नवाज के करीब, जैसे ही देखा है कहा जरा एक बात तो बता दो कि तुम्हें यहाँ रहना है या यहाँ से जाना है? गरीब नवाज ने कहा कि जाने के लिए नहीं आया हूँ, रहने के लिए आया हूँ। जब इतना कहा था कहा यहाँ से चला जा, अना सागर का पानी वापस कर दे। गरीब नवाज ने कहा है हुकूमत अना सागर पे तेरी नहीं, हुकूमत परवरदिगार की है। देने वाला भी वो है, लेने वाला भी वो है, मगर लेने वाला होना चाहिए जो उससे दिल लगा लेता है, जो उसके महबूब से दिल लगा लेता है। अल्लाह उसका साथ दिया करता है, अल्लाह उसकी हर कदम पे हिफाजत करता है, अल्लाह उसकी हर कदम पे हिफाजत करता है। जब इतना सुना है, अब इसने जादू ने, अब इस बादशाह ने अब गरीब नवाज पे जादू चलाना शुरू किया है, मगर गरीब नवाज पे जादू असर नहीं कर रहा है। मगर इसने चलाना चाहा, मगर जादू ना चल सका। मगर आओ मेरे गरीब नवाज को देखो, गरीब नवाज ने हुक्म फरमाया था ज्योति को, जैसे ही ज्योति जमीन से उठी, उठने के बाद जैसे कि चोंगी जयपाल किस्से पे जब उसने पीटना शुरू किया है, अब गिर गया है ये कदमों में गरीब नवाज के, और कहने लगा ए अल्लाह के फकीर, ए अल्लाह के वली, मुझे कलमा पढ़ाइए और इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। आला हजरत की बात करते हो। अगर दीन को फैलाने वाला अगर इस दुनिया के अंदर कोई था तो वो बगदाद, वो अजमेर का गरीब नवाज है।